Good day, everyone. Today's topic is linked lists. Linked lists are linear data structures that are stored in non-contiguous memory locations. As arrays are stored in contiguous memory locations, but linked lists may or may not be stored in contiguous memory locations. Linked lists can be implemented using arrays. So linked list is a user-defined data structure and array is a built-in data structure. Similarly, linked lists can be implemented using pointers. So if we implement the linked list using arrays, then it is called static implementation or array implementation of linked list. If linked lists are implemented using pointers, then we say it is a dynamic implementation or pointer implementation of linked list. What is a linked list? A linked list is a linear collection of data elements called nodes. So लिंक लिस्ट क्या है? लीनियर कलेक्शन है डाटा एलिमेंट्स की. लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. एवरी एलिमेंट of a linked list is called a node, where the linear order is given by means of pointers. How we maintain the linear order? Through the pointer, through the chain pointers, through the chains, or by means of addresses. Each element, or we can say node, is divided into two parts. Every node or every element of the linked list is divided into two parts. The first part is called the information part of the element, and the second part contains the address of the next node. Address is of that next node, and that part is called the link part, next pointer field part, reference part of the node or in the list. I am repeating again. Each node is divided into two parts. The first part contains the information of the element, and the second part contains the address of the next node, and that is called the link part, next pointer field part, reference part in the list. So here a picture of node is given, a node of a linked list. It has two parts. The first part is called the info part. The second part, info part, that contains the information of that particular element. Second part is called the next part, that contains the address of the next node of similar type. G. Next, a proper definition of a linked list. A linked list is a linear data structure in which the elements are not stored at contiguous memory locations. The linked list consists of nodes where each node contains a data field. There are two parts of each node. The first part contains the data field or the value field or the information field, and the second part is reference or a link to the next node in the list. So each element of the linked list is a separate object. Every element, every part is a separate object. The elements are linked. The elements are linked using pointers or addresses. ठीक है जी. Now, this is an example of
a linked list having 3 nodes or 3 elements. List is a variable that points to the first node of the linked list. Through this, we can access this linked list and can manipulate this linked list. Now, list points to the first node. First node contains the information part and the next part. Information part contains the information. Next part contains the address of the second node. Second node again contains two parts, the information part and the next part. The information part contains the info and the next part contains the address of the third node. Third node contains the again has two parts, information and next. Information contains the info contains the information part and the next contains null. It indicates that no more elements are there in the linked list. So there is only one node that contains null pointer, which indicates the end of the linked list. All other nodes contains the address of the next node in the linked list. This is a real life example of a linked list. So again, we have a list pointer that points to the first node of the list. Each component or each element of the linked list has two parts. The first part is information part. The first node contains 5, which is the information, and the next part contains the address of the second node. It is a memory address, just shown as dot. Second node contains the information 3 and the next part contains the address of the third node. Third node contains the information 8 and next part contains null, which indicates that no more elements are there in the linked list. Next, how the linked list can be implemented. There are two ways to implement a linked list. The first is array or static implementation of a linked list. Array means we are using array data structure, built-in data structure of a language to implement the linked list. Second one is dynamic or pointer implementation of a linked list. In dynamic, we use pointers to implement the linked list. Static means during compile time. Dynamic means the memory is allocated at during runtime. In static case, the memory is allocated during compile time. In a dynamic, the memory is allocated during runtime to the linked list. In this lecture, we discuss about the array or static implementation of linked list and the various operations that can be performed on linked list. So, first, we define a constant num nodes having value 500. So, we are creating a linked list of maximum 500 nodes. When we have to use array implementation, we have to declare in advance how many elements the linked list will contain. Next, node type is the name of a structure. Node type is a structure which contains two elements, two items, info and next, both are of integer type. So the address, in case of array implementation, the address is also an integer, and in this case we also maintain info part as an integer. Why next is an integer? Because num nodes, the address is of an element is between 0 to
99. The index of the array is between 0 to 499. So, and that is an integer value which is can be maintained by, or which is maintained by the next variable which is of integer type. So this is just a declaration of linked list. Actually, linked list is not created by this declaration. So what we will do next, node is an array of size num nodes. हमने क्या किया, हम एक declaration कर रहे हैं, node is an array of size num nodes of node type which is a structure. So node, इस node type का node एक वेरिएबल है जो कि एक अरे है, कितने साइज का, 500 का, और वो एक्चुअल में क्या है, एक स्ट्रक्चर. सो दिस क्रिएट्स अ लिंक, दिस क्रिएट्स an array of size 5 of node type structure. कहता a pointer to a node is represented by an array index. So एक एड्रेस है किसी नोड का, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अरे इंडेक्स के साथ. Thus a pointer is an integer between 0 and num node minus 1. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एड्रेस होगा वो 0 से num node minus 1 के बीच में होगा. num node की वैल्यू 500 है तो 0 से 499 के बीच में होगा. That references a particular element of the array node. जो किसको रेफरेंस करेगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो अरे नोड के को रेफर करेगा. नेक्स्ट, some notations used in algorithms. It may or may not be used in C programs. Suppose now null pointer is represented by integer -1 because our index starts from 0, so -1 indicates the null pointer. Now if we have to refer pth node, then it will be used using node within square bracket p, because node is an array, and in C if we have to represent array, that is through square bracket for any element p. If we have to represent information within the node p, that is represented through nodes within square bracket p dot info. If you have to represent the address or next pointer of node p, then it will be referenced through node within square bracket p dot next. So dot operator, we will use dot operator to access the elements of node which is a structure, and because it is an array, so to access pth element, that is first, second, third, fourth, fifth, sixth, we use square brackets, and within that square bracket the value of that, the address of that node is given. It will access that particular node. Next, so initially, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने कोई सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे के सारे घर खाली होते हैं. जैसे ही घर बन जाते हैं सारे के सारे घर खाली होते हैं, कोई वेकेंट होते हैं, कोई भी घर किसी को अलोकेट नहीं होता. तो जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट फैमिली आई, हम अब वो जो खाली नोड जो घर होते हैं उसको हम अवेलेबल लिस्ट कहते हैं कि ये घर अवेलेबल हैं अलोकेट करने के लिए.
जैसे ही फर्स्ट कोई फैमिली आती है तो उसको एक घर उसमें से उनकी पसंद का अलॉट कर दिया जाता है, फिर दूसरी आती है तो दूसरा अलॉट कर दिया जाता है, तीसरी आती है तीसरा अलोकेट कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। मान लीजिए बीच में से कोई फैमिली छोड़ के चली गई तो उसका वो जो घर होगा वो वेकेंट हो जाएगा, और उसको हम वापस किस में डाल देंगे, अवेलेबल लिस्ट में, यानी कि रीअलोकेशन के लिए वो घर अवेलेबल है, दोबारा एलोकेट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो नया आएगा उसको दिखा देंगे कि ये अगर आपको पसंद है तो आपको अलॉट कर दिया जाए। बट लिंक लिस्ट के अंदर पसंद वाली बात नहीं है, तो जो भी अब यहाँ पे जो नोड अवेलेबल होंगे वो हम अलोकेट करेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं। पता नहीं चली ऑल द नोड्स आर अनयूज्ड। जैसे ही हम स्टार्टिंग में लिस्ट क्रिएट करेंगे तो लिस्ट हमारी एम्प्टी लिंक लिस्ट बनेगी, तो सारे के सारे जो नोड है वो अनयूज्ड है, देयरफॉर दे मस्ट ऑल बी प्लेस्ड ऑन द अवेलेबल लिस्ट। उसको कहाँ पे रखेंगे, अवेलेबल लिस्ट के। द ग्लोबल वेरिएबल, वी हैव ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं विदाउट पासिंग ना, तो दे आर कॉल्ड ग्लोबल। द ग्लोबल वेरिएबल अवेल इज यूज्ड टू पॉइंट टू द अवेलेबल लिस्ट। सो ग्लोबल वेरिएबल एक अवेल है जो किसको, वो किस लिए यूज करेंगे, अवेलेबल लिस्ट को पॉइंट करने के लिए। यहाँ पे देखें लिस्ट है, एक लिस्ट पॉइंटर है, लिस्ट पॉइंटर अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि लिस्ट के अंदर अभी कोई हमने एलिमेंट नहीं या नोड कोई अभी ऐड नहीं किया। अवेलेबल लिस्ट पॉइंटर को देख लीजिए, अवेलेबल लिस्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू जीरो। जीरो के अंदर किसका एड्रेस है, वन का। वन वन के अंदर किसका एड्रेस है, सेकंड का। सेकंड के अंदर कैसा है, थर्ड का। थर्ड के अंदर फोर्थ का। फोर्थ के अंदर फिफ्थ का। फिफ्थ के अंदर सिक्स्थ का। सिक्स्थ के अंदर सेवन्थ का। सेवन्थ के अंदर एट्थ का। एट्थ के अंदर नाइन्थ का। नाइन्थ के अंदर टेंथ का। और टेंथ के अंदर -1, which indicates that no more nodes are there or no more elements are there. So in this way, through this chain, these nodes are linked together. अगर ये रिप्रेजेंटेशन है अरे की, अगर आप इसको ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी ये आपको लग सकती है। ये अवेल हमारा ग्लोबल वेरिएबल है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ये दिस इज अ फर्स्ट नोड, this is the first node, this is the second node, थर्ड नोड हो गया। ये जो नोड होगा ये n-1 होगा, और जो लास्ट वाला है वो कौन सा होगा जी, वो nth होगा। ठीक है, सो ये सारे के सारे अवेलेबल नोड्स हैं, ये सारे के सारे अवेलेबल नोड्स हैं जिनको अलोकेट किया जाता है, जिनको अलोकेशन की जाती है, जिनको वैल्यूज देके लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है। जो लास्ट पॉइंट नोड है उसके अंदर क्या होगा जी, नल वैल्यू होगी, विच इंडिकेट्स नो मोर एलिमेंट्स आर देयर, नो मोर नोड्स आर देयर इन द लिस्ट। नेक्स्ट, so now what are the assumptions to write functions and or operations on linked list। अगर हम लिंक लिस्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास assumptions, क्या हम assumptions लेके चल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो फॉर ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शन हम लिखेंगे, द assumptions are that node and avail are global variables। node और avail क्या है, वो global variable है। without passing these two variables these can be accessed by any function। इनकी वैल्यूज कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है विदाउट पासिंग देम टू, विदाउट पासिंग these functions to the to any function or to the main function and can be used by any function। when a node is needed for use in a particular list, जब भी हमें किसी नोड की जरूरत है और हमने उसको किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर यूज करना है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट। आपको अवेलेबल लिस्ट में से उसको लेना पड़ेगा, फिर आप उसको अलोकेशन कर सकते हो। विदाउट टेकिंग फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट यू कैन नॉट allocate that now। सिमिलरली जब भी हमें कोई नोड हम डिलीट करेंगे यानी कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, इट इज रिटर्न टू द अवेलेबल लिस्ट, इसको अवेलेबल लिस्ट के अंदर रिटर्न कर देंगे। आपका कंप्यूटर
कि जो ये आपके मोबाइल की मेमोरी भी इसी तरह वर्क करती है। अगर आपने मान लीजिए कोई फाइल डाउनलोड की तो मेमोरी उसको अलोकेट हो जाती है, और फिर जैसे ही आप उस फाइल को डिलीट करते हो तो वो जो खाली की हुई स्पेस होती है उस फाइल द्वारा वो अवेलेबल लिस्ट में चली जाती है, और फिर जब नेक्स्ट फाइल आप कभी स्टोर करते हो तो उसके लिए वो मेमोरी अवेलेबल होती है ताकि उसमें नई चीज़ें स्टोर की जा सके। इट also acts as a linked list. Now the first operation or the first function that we can perform on a linked list is getNode. What is the purpose of getNode? getNode the purpose of the getNode is to take an empty node from the available list and provide its address to the user or to the main function. So कहता it is a function that removes a node from the available list में से ये नोड को रिमूव करेगा and returns a pointer to it, और उसका एड्रेस मेन फंक्शन को या उसके यूजर को रिटर्न करेगा। खास बात, गेट नोड फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट नोड। जो गेट नोड फंक्शन है वो खास बात क्या है कि वो पहला नोड जो अवेलेबल लिस्ट के अंदर फर्स्ट नोड होगा उसको लेगा फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट फॉर एलोकेशन, क्योंकि फर्स्ट नोड को लेना इजी है एज कंपेयर टू अदर नोड्स। सो ये सबसे जो पहला नोड होगा उसको अवेलेबल लिस्ट में से लेगा, बाकियों को लेटर ऑन पे करेगा। तो ये हमारे पास एक पिक्चर आपके सामने है। लिस्ट को अभी कोई नोड एलोकेट नहीं किया गया है। अवेल अगर आप देख लीजिए तो उसके अंदर जो जितने सारे के सारे जो नोड्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल लिस्ट के अंदर हैं। पी हमने एक मान लीजिए टेम्परेरी वेरिएबल लिया, तो पी क्या करेगा, पी को हम पी इक्वल टू अवेल कर देंगे, यानी कि पी उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको पहले अवेल करता था। तो ये पी जीरो नोड को करने लगे क्योंकि हमने पहला नोड निकालना है, ये वाला नोड बाहर निकालना है, ये वाला दिस वन। सो पी इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू अवेल डॉट नेक्स्ट या पी डॉट नेक्स्ट। पी का नेक्स्ट पार्ट अवेल के अंदर डाल देंगे, पी का नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है 1, तो अवेल किसको पॉइंट करने लग जाएगा 1 को करने लग जाएगा। इसको मैं अवेल डॉट नेक्स्ट भी कह सकता हूँ, इसको मैं पी डॉट नेक्स्ट भी कह सकता हूँ क्योंकि इसका नाम पी भी हो गया है। इस जीरो नोड के दो नाम हो गए हैं इस अलोकेशन से पहले, वो जीरो को भी पॉइंट कर, अवेल भी जीरो को पॉइंट कर रहा था, पी भी जीरो को पॉइंट कर रहा था, बट जैसे ही हमने अवेल इक्वल टू पी नेक्स्ट किया या अवेल इक्वल टू अवेल नेक्स्ट किया तो अवेल 1 को पॉइंट करने लग गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या कहता है। सो getNode नाम का हमारा एल्गोरिथम है। वी हैव एन एल्गोरिथम named getNode which is returning an integer value or we are not passing any value to it. P is a temporary variable if avail equal to -1। अगर अवेलेबल लिस्ट के अंदर कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है एलोकेशन करने के लिए, देन मेमोरी इज ओवरफ्लो। जो अवेलेबल मेमोरी है वो ओवरफ्लो हो गई, यानी कि हमारे पास कोई स्पेस खाली नहीं है, हम एलोकेशन नहीं करते और हम प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे। ये मैसेज प्रिंट होगा और प्रोग्राम से एग्जिट होगा। अदरवाइज P इक्वल टू अवेल, मैंने यही तो आपको कहा था, P इक्वल टू अवेल, P इक्वल टू अवेल, P इक्वल टू अवेल मतलब जहाँ पे जिसको अवेल पॉइंट कर रहा था अब उसको P पॉइंट करना शुरू कर देगा। अवेल इक्वल टू नोड अवेल डॉट नेक्स्ट, अवेल के अंदर अवेल नोड डॉट नो अवेल नोड अवेल डॉट नेक्स्ट, नोड में जो हमारा अरे है उसके अंदर अवेल जिसको पॉइंट कर रहा है, अवेल उस टाइम पे अवेल 0 को पॉइंट कर रहा था, उसके नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू अवेल के अंदर कॉपी कर दी तो अवेल 1 को पॉइंट करने लग गया। रिटर्न, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, P इक्वल टू अवेल, अवेल इक्वल टू नोड अवेल डॉट नेक्स्ट एंड रिटर्न P। हमने जो नोड निकाला उसका अवेलेबल लिस्ट में से उसका एड्रेस किसको रिटर्न कर दिया, उसके यूजर को, उसके मेन फंक्शन को या किसी दूसरे फंक्शन को जो इस गेट नोड को कॉल कर रहा है। इफ अवेल इक्वल्स -1 व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड
देयर आर नो नोड्स अवेलेबल, कोई नोड अवेलेबल नहीं है जब अवेल की वैल्यू -1 होगी। दिस मीन्स लिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम हैव ओवरफ्लोड द अवेल। नेक्स्ट इज अ फ्री नोड फंक्शन। फ्री नोड फंक्शन क्या करेगा, मान लीजिए हमने कोई नोड अपनी लिस्ट में से डिलीट कर दिया, तो फ्री नोड फंक्शन उसको अवेलेबल लिस्ट में एज ए फर्स्ट नोड ऐड कर देगा। ठीक होगी जी बात, एज ए फर्स्ट नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड ऐड करना ईजी है एज कंपेयर टू अदर नोड्स। चलिए, द फंक्शन फ्री नोड accepts a pointer to a node and returns that node to the available list, उस नोड को अवेलेबल लिस्ट के अंदर रिटर्न करता है। दिस फंक्शन इंक्लूड्स द डिलीटेड नोड एज ए फर्स्ट नोड, ये पॉइंटर नोट करने वाली है फर्स्ट नोड इन द अवेलेबल लिस्ट के अंदर एज ए फर्स्ट नोड उसको ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास सिचुएशन। पिक्चर के अंदर लिस्ट हमारे पास अब की बार लिस्ट अवेलेबल है, लिस्ट के अंदर 5 हमने नोड डाली है और एक हमारे पास अवेलेबल लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास ये 6 नोड है। अवेलेबल जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर देख लीजिए, 0 के अंदर 1 का एड्रेस है, 1 के अंदर 2 का एड्रेस है, 2 के अंदर 3 का एड्रेस है, 3 के अंदर 4 का एड्रेस है और 4 के अंदर -1। इट इंडिकेट्स देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द लिंक्ड लिस्ट। चलिए, अब मान लीजिए सपोज कि हमने इस नोड को डिलीट कर दिया। सो वी हैव डिलीटेड दिस नोड। सो डिलीटेड नोड का नाम क्या है जी, पी है। सपोज किया है मैंने कि इसका नाम पी। अब इसको हमने अवेलेबल लिस्ट के अंदर ऐड करना है, तो क्या करें, अवेल के अंदर पी का एड्रेस डाल देंगे, तो अवेल इसको पॉइंट करेगा, अवेल इक्वल टू पी, अवेल इक्वल टू नोड अवेल डॉट नेक्स्ट, या सॉरी अवेल इक्वल टू पी, अवेल पी को पॉइंट करने देगा। पी के नेक्स्ट पार्ट में अवेल आ जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए, अवेलेबल लिस्ट बन गई, मतलब 2 के बाद 5 के बाद 6, बाकी वाली जुड़ी हुई है, ये ऐड। ठीक है जी, चलिए यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास सिचुएशन। सो पी इक्वल टू अवेल, जिसको पी पॉइंट कर रहा था अब अवेल उसको पॉइंट करने लग गया, और इसके नेक्स्ट पार्ट में अवेल के नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, अवेल कॉपी कर दिया। सो पहले ये कॉपी करना है, फिर अवेल की वैल्यू चेंज कर दें। ठीक है जी, अदरवाइज ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। पहले अवेल की वैल्यू कॉपी करें, फिर अवेल की वैल्यू चेंज करें। देखते हैं, फ्री नोड नाम का we have a function named free node, no value is returned by this function, we are passing the address of a node that we want to add in the available list, so its name is p। so सबसे पहले आपने क्या कहना, node p dot next is equal to avail, नोड p के नेक्स्ट पार्ट में किसको कॉपी कर दें, अवेल को कॉपी कर दें। मैंने आपको बताया था पहले अवेल, उसके नेक्स्ट पार्ट में अवेल को कॉपी करना है, फिर अवेल की वैल्यू चेंज करनी है। अवेल इक्वल टू पी, अवेल की वैल्यू कितनी कर देनी है, पी कर देनी है, और प्रोग्राम से आपने रिटर्न कर देना। क्योंकि अगर आप पहले अवेल की वैल्यू चेंज कर दोगे तो अवेल की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, फिर ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी नहीं होगी, ये स्टेटमेंट ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ये पहले आपने नेक्स्ट पी के नेक्स्ट पार्ट में अवेल को कॉपी करना है, फिर पे अवेल इक्वल टू पी करना है। नेक्स्ट, नाउ हाउ टू इंसर्ट ए नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट। एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो इंसर्ट आफ्टर, यानी कि वी कैन इंसर्ट ए नोड आफ्टर सम नोड पी। हमें कोई नोड पी दिया होगा, उसके बाद मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, उस पीएथ लोकेशन के बाद। पीएथ पोजीशन पे मैं नोड इंसर्ट नहीं कर सकता, पीएथ के बाद कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। द फंक्शन इंसर्ट आफ्टर एक्सेप्ट्स ए पॉइंटर पी टू ए नोड, किसी नोड पी का एड्रेस वो एक्सेप्ट करेगा, एक आइटम एक्स एक्सेप्ट करेगा एज ए पैरामीटर जो आपने इंसर्ट करनी है। ये सबसे पहले इंश्योर करेगा कि पी नल तो नहीं है,
अगर पी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर पी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसके बाद कहाँ इंसर्ट करोगे? अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके आगे क्या चीज़ इंसर्ट की जाएगी? अगर ऐसा नहीं है, नल नहीं है, देन इट इंसर्ट्स एक्स इनटू द नोड फॉलोइंग द नोड पॉइंटेड टू बाय पी। अगर वो नल नहीं है तो फिर ये एक्स को इंसर्ट कर देगा इनटू द नोड फॉलोइंग द नोड पॉइंटेड टू बाय पी। चलिए, अब हमारे पास एक लिस्ट है, वो आपने अब तक देख ली होगी। हमारे पास ये 5 नोड की एक लिस्ट बनी हुई है जो चेन्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये हमारे पास एक अवेलेबल लिस्ट है, ये भी हमारे पास बनी हुई है ना। अब हमने इंसर्ट आफ्टर करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ 3 और 4 के 2 और सॉरी यहाँ अगर इस पहले से देखें तो 2 और 3 के बीच में एक नया नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो मेरे को P दिया गया, अभी 2 के बाद एक नया नोड इंसर्ट कर दें, 2 के बाद एक नया नोड इंसर्ट कर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गेट नोड को कॉल करेंगे। गेट नोड को कॉल करेंगे तो गेट नोड हमें पहला नोड अवेलेबल लिस्ट में से दे देगा। अवेलेबल लिस्ट इसको 6 को पॉइंट करनी शुरू कर देगी, और ये वाला फिफ्थ लोकेशन पे जो नोड है वो हमारे पास खाली हो जाएगा। इसके अंदर हम, क्योंकि एक्स इन्फॉर्मेशन सेट करनी है, इसके अंदर हम एक्स इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर देंगे। अब आपने पॉइंटर चेंज करना है। हम क्या चाह रहे हैं, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 नोड के बीच में। सो 2 के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दो, वो 5 कर दो। तो यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक होगी जी। 3 को मैंने 5 कर दिया। 5 इसके फिफ्थ के जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके अंदर मैं वैल्यू 3 कर दूंगा, तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक होगी जी बात। चेक कर लीजिए लिंक, ये एलिमेंट इंसर्ट हो गया। 0 के बाद 1, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिफ्थ, ये फिफ्थ पे आ गया। फिफ्थ के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद माइनस। ये लिंक हमारी बनी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हम, इसने क्या किया, सबसे पहले इसने गेट नोड किया, क्यू के अंदर गेट नोड कर दिया, क्यू के अंदर गेट नोड कर दिया। ठीक होगी जी बात। तो गेट नोड ने हमें अवेलेबल लिस्ट में से पहला नोड एलोकेट कर दिया, फिर उस क्यू के इंफॉर्मेशन पार्ट में एक्स कॉपी कर दिया, ये हमने एक्स भी कॉपी कर दिया। यहाँ तक बात हो गई जी क्लियर। दो काम हो गए। अवेलेबल लिस्ट में से आपने नोड निकाल लिया और उसके अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट डाल दिया। नेक्स्ट, अब आपको 2 पॉइंटर शिफ्ट करने हैं और हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। अवेल की पोजीशन देख लीजिए, वो 6 को पॉइंट करने लग गया। ये काम किसका था, गेट नोड का सारा। अब आपको 2 पॉइंटर शिफ्ट करने हैं और नोड हमारा लिंक लिस्ट के अंदर, नोड क्यू के नेक्स्ट पार्ट में, नोड क्यू के नेक्स्ट पार्ट में, नोड क्यू के नेक्स्ट पार्ट में नोड पी का नेक्स्ट पार्ट कॉपी कर दो, यानी कि 3 यहाँ कॉपी। नोड क्यू के नेक्स्ट पार्ट में नोड पी का नेक्स्ट पार्ट, ये वैल्यू यहाँ कॉपी कर दीजिए। ठीक होगी जी बात। ये हमने कर दिया, नोड क्यू के नेक्स्ट पार्ट में नोड पी का नेक्स्ट पार्ट। फिर नोड पी के नेक्स्ट पार्ट में क्यू कॉपी कर दो, नोड पी के नेक्स्ट पार्ट में क्यू, क्यू की वैल्यू है 5, 5। चेक कर लीजिए, लिंक लिस्ट बन चुकी है, एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। अब आप सीक्वेंस बनाएं, यहाँ पे देखें 1 से हम 2 पे आए, सॉरी 0 से 1, 1 से 2, 2 से हम 5 पे आ गए, 5 से हम 3 पे आ गए। ठीक होगी जी बात। 3 से हम 4 पे चले गए और 4 से वापस -1 पे आ गई। लिस्ट हमारी कंप्लीट। एल्गोरिथम देख लेते हैं। हम एक आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं, एक्स को, इन द लिस्ट आफ्टर ए नोड पॉइंटेड टू बाय p. We have a function named insert after. No value is returned by this function. We are passing 2 parameters, p, after which we want to insert a node, and x,
द इंफॉर्मेशन वी वांट टू इंसर्ट इन द लिंक्ड लिस्ट। q एक टेम्परेरी वेरिएबल है ऑफ इंटीजर टाइप। फर्स्ट वी चेक इफ p इक्वल टू -1, अगर वो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके बाद आपने नया नोड इंसर्ट करना है, देन इनवैलिड इंसर्शन एंड वी रिटर्न फ्रॉम द कोड। अदरवाइज q इक्वल टू गेट नोड, सबसे पहले गेट नोड करेंगे, अवेलेबल लिस्ट में से हमारे पास एक नोड अवेलेबल हो जाएगा। नाउ देन नोड q डॉट इन्फो इक्वल टू x, q के इन्फो पार्ट में हम x को कॉपी कर देंगे। अब पॉइंटर शिफ्ट करने हैं आपने, नोड q डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड p डॉट नेक्स्ट, नोड q डॉट नेक्स्ट में नोड p डॉट नेक्स्ट को कॉपी कर दीजिए, नोड p डॉट नेक्स्ट के अंदर q कॉपी कर दीजिए और प्रोग्राम से रिटर्न। अगर पिक्चर से आपको बात क्लियर होगी तो फिर आपने सिंपली लाइनें ही लिखनी है, 2 3 4, और उससे आपका एल्गोरिथम बन जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट ए नोड फ्रॉम ए लिंक्ड लिस्ट। ये भी डेल आफ्टर है, हमें pth नोड दिया होगा, उससे नेक्स्ट वाला नोड आपने डिलीट करना। मैं pth नोड को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि हमें उससे प्रीवियस वाले का एड्रेस चाहिए अगर हम किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं, और वो इसलिए हम डेल आफ्टर करते हैं pth के बाद वाला। सो हमारे पास डेल आफ्टर नाम का फंक्शन है, 2 पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, एक तो p जिसके बाद हमने, ये लोकेशन है जिसके बाद वाला नोड हमने डिलीट करना है, और जो इन्फॉर्मेशन हम डिलीट करेंगे उसको हम किसके अंदर स्टोर कर लेंगे, px के अंदर। सो ये डिलीट करेगा नोड फॉलोइंग नोड p और स्टोर कर लेगा कंटेंट्स किसके अंदर, x के अंदर। कब करेगा, जब डेल आफ्टर p&x के साथ हम इसको कॉल करेंगे। नेचुरली वो पहले px में स्टोर करेगा, px को x में पास कर देगा, तो नेचुरली ओरिजिनल में वो कंटेंट x के अंदर आ जाएगा। So this function reads the node after node p and returns the node as a first node in the available list. ये क्या करेगा, p के अगले वाला नोड को डिलीट कर देगा और अवेलेबल लिस्ट के अंदर नोड को रिटर्न कर देगा डिलीशन के बाद। लिंक लिस्ट हमारे पास 5 नोड की अवेलेबल है, अवेलेबल लिस्ट 6 नोड की हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी पुरानी पिक्चर थी, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट लिस्ट, अब pth यानी कि मान लीजिए मैं ये वाला नोड थर्ड नोड डिलीट करना चाहता हूँ, p की वैल्यू 2 है और हम थर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। चलिए थर्ड को मान लीजिए डिलीट कर दिया, ठीक होगी जी बात। अब इसको डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद क्या 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 चीज़ें चेंज होंगी, अवेल थर्ड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ आ जाएगा, ठीक होगी जी बात। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई, 3 के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स, ये हो जाएगा। यहाँ क्या चेंजेस होंगे, 3 के बाद यहाँ पे, यहाँ 2 के अंदर 3 की बजाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए, 0 के अंदर 1, 0 के अंदर 1, 1 के अंदर 2, 2 के अंदर 4 और 4 के अंदर -1। चेक कर लीजिए, लिस्ट हमारी डिलीट हो गई है। अब आपने बस स्टेटमेंट्स लिखनी है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं क्या कहता है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ स्टेटमेंट के हिसाब से q इक्वल, हमने सबसे पहले q लेना है, q। तो q के अंदर आपने क्या किया, p का नेक्स्ट पार्ट लेना है क्योंकि अगले वाला नोड डिलीट करना, तो मैंने कहा था 3 नोड डिलीट करना q के अंदर, तो q नेचुरली इसको पॉइंट करने लग जाएगा, q इक्वल टू गेट, q इक्वल टू नोड p डॉट नेक्स्ट, नोड p डॉट नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो नेचुरली q 3 को पॉइंट करना। फिर उसके बाद px इक्वल टू नोड q डॉट इन्फो, q में से इन्फो पार्ट दैट इज 400 हमने निकाला और किसको दे दिया, px को। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, px के अंदर हमने एक नया वेरिएबल था p जो पास हुआ था एड्रेस का, उसके अंदर हमने 400 स्टोर कर दिया। फिर अब आप पॉइंटर शिफ्ट करने हैं, नोड p के नेक्स्ट पार्ट में नोड q का नेक्स्ट पार्ट कॉपी करते हैं, नोड p के नेक्स्ट पार्ट में, नोड p के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 3 की जगह पे नोड q का 4, ये 4 यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है जी। नोड p के नेक्स्ट पार्ट में नोड q का नेक्स्ट पार्ट कॉपी कर देंगे, 4 यहाँ कॉपी कर दिया, तो चाहे लिंक बन गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद
ठीक है जी। अगर आप एक्चुअल में देखें तो लिस्ट कुछ ऐसी आपको नजर आएगी, चेक कर लीजिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद -1। अवेल आपका थर्ड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10 एंड -1। पी एक्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने नोट रीड किया था और ये अवेलेबल लिस्ट के अंदर चला गया। एल्गोरिथम देख लेते हैं। del after we have a function named del after, no value is returned by this function। p वो नोड है जिसके बाद वाला नोड हमने डिलीट करना है और जो नोड हम डिलीट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर करेंगे, px के अंदर स्टोर करेंगे। q एक टेम्परेरी वेरिएबल है। सबसे पहले वी चेक इफ p इक्वल टू -1 और नोड p डॉट नेक्स्ट इक्वल टू -1, क्या p एग्जिस्ट नहीं करता? p इक्वल टू -1 है तो p एग्जिस्ट नहीं करता और नोड p डॉट नेक्स्ट तो p के नेक्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसके बाद वाला नोड डिलीट करना है, या उस pth नोड के बाद कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम सिंपली क्या कह देंगे, इनवैलिड डिलीशन, और प्रोग्राम से हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज p भी एग्जिस्ट करता है, p के नेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो डिलीशन वैलिड है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले q के अंदर नोड p डॉट नेक्स्ट की वैल्यू कॉपी कर लेंगे। q के अंदर नोड p डॉट नेक्स्ट की वैल्यू कॉपी कर लेंगे। फिर px के अंदर नोड q डॉट इन्फो पार्ट कॉपी कर लेंगे, उस q का इन्फो पार्ट px के अंदर कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नोड p डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड q डॉट नेक्स्ट, नोड p के नेक्स्ट पार्ट में नोड q का नेक्स्ट पार्ट कॉपी कर देंगे, तो हमारा p नोड अब अकेला ऐसे इंडिपेंडेंट रह गया। उसको q को कौन सा, q रह गया अकेला, क्योंकि p के नेक्स्ट पार्ट में q का नेक्स्ट पार्ट है। q को कहाँ भेज देंगे, हम फ्री नोड कर देंगे, फंक्शन को दे देंगे, वो उसको किस में ऐड कर देगा, अवेलेबल लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा और प्रोग्राम से हम रिटर्न कर जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना।